Hello students, I am Ronak Afroz and today we are going to study chapter number 4, The Trinity Onti Gongolop. It is a poem and this poem is written by C.J. Dennis. See the name, it is just like a tongue twister जैसा इस नेम लगता है, थोड़ा सा different है नेम, The Trinity Onti Gongolop. So let's start the poem. First of all, we will know something about the poet. C. It is written by C.J. Dennis and whose full name was Clarence Michael James Stanislaus Dennis, and he is better known as C.J. Dennis, and born on 1876 and he died on 1839, and he was an Australian poet known for his humorous poems. Humorous is a word which means a genius sense of fun. ये humorous poem लिखा करते थे और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फेमस रहे हैं और इनका बहुत ही प्रसिद्ध रही इनकी एक पोइट्री जिसका नेम था द सॉन्ग्स ऑफ अ सेंटिमेंटल ब्लॉक. Let's start the poem. There's a funny insect. There's a funny insect that you don't often spy, and it isn't quite a spider and it isn't quite a fly. It is something like a beetle and a little like a bee, but nothing like a woolly grub that climbs upon a tree. And its name is quite a hard one, but you will learn it soon, I hope. So try. Try-enti-onti, gongolop. Dear students, see, in the first stanza, the poet describes a rarely seen funny insect, which name is Trinity Gongolop. And poet is also aware that the name of the insect is very difficult word to pronounce and spell also, but he hope one would learn it eventually. See the Hindi meaning. There's a funny insect that you don't often spy. वो कहते हैं कि एक बहुत ही विचित्र इंसेक्ट है, कीड़ा है जिसको आपने शायद ही देखा होगा. एंड देयर इज़ नॉट अ क्वाइट स्पाइडर. और इसका जो लुक है, जो इसका दिखता कैसा है, ये स्पाइडर के जैसा, मकड़ी के जैसा भी ये नहीं दिखता है, ना ही ये फ्लाई के जैसा दिखता है, बट हाँ ये थोड़ा थोड़ा बीटल जैसा दिखता है. बीटल एक तरह का कीट होता है, कीड़ा होता है ब्लैक कलर का. एंड अ लिटिल लाइक अ बी. और ये थोड़ा थोड़ा बी के जैसा भी दिखता है, बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रब. वूली ग्रब मीन्स larva of an insect. In other words, you used to say caterpillar जिसको आप कहते हो. तो ये कैटरपिलर के जैसा भी नहीं दिखता है. लार्वा जो होता है इंसेक्ट का, उसके जैसा भी नहीं दिखता है, जो अक्सर पेड़ों पर चढ़ा हुआ चिपका हुआ हमें दिखाई देता है. इट्स नेम इज़ क्वाइट अ हार्ड वन. और मुझे लगता है कि इसका नेम जो है थोड़ा सा टफ ज़रूर है, हार्ड ज़रूर है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत जल्दी सीख जाओगे. तो एक बार मेरे साथ ट्राई करो. Try-enti-onti gongolop. Come to the next stanza. Yes, here. It lives on weeds and leaves and has a funny face. Its appetite is hearty and its manners a disgrace. When first you come upon it, it will give you quite a scare. But when you look for it again, you find it isn't there. And unless you call it softly, it will stay away and mop. So try-enti-onti gongolop. See, in this stanza, the poet describes the more characteristics of the insect. He tells, this insect feeds on weeds and leaves and it eats a lot. ये बहुत ज़्यादा खाती है. Its manners are a disgrace. Thou it eventually scare you and then disappear and stay away unless you call out it too softly. जब तक इसको आप प्यार से नहीं बुलाते हो. See here, weeds कहते हैं बच्चों घास फूस को आप कह सकते हो. अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको कहते हैं वीड्स. तो ये जो इंसेक्ट है ये कहाँ पर रहता है? अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन पर ये रहता है. घास फूस, शैवाल,
घास पात जो जिसको हम लोग कहते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में। तो इस पर ये कीड़ा रहता है। इट्स एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स अ नेचुरल डिज़ायर टू सेटिस्फाई अ बॉडीली नीड स्पेशली फॉर फूड, यानी खाने की जो इच्छा है, जिसकी जो ना खाना जो ये खाता है, खाने की जो इच्छा है, ललक है इसकी, बहुत ही लार्ज है, बहुत ही ज़्यादा है। एंड इट्स मैनर डिस्ग्रेस, और कभी कभी इसका मैनर जो है डिसग्रेस, दैट मीन्स इट डजंट बिहेव वेल, बैड बिहेवियर, ये अच्छे से बिहेव नहीं करता है, कभी कभी इसका बिहेवियर जो है अच्छा नहीं होता है। एंड सी इन द नेक्स्ट लाइन, व्हेन यू फर्स्ट कम अपॉन इट, जब इसके पास आप आते हो पहली बार तो ये थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश करेगी, बट व्हेन यू लुक फॉर इट अगेन, लेकिन जब आप इसको दोबारा इसकी तरफ देखते हो तो क्या होता है, ये आपको वहाँ दिखाई ही नहीं देगी, गायब हो जाती है। अनलेस, जब तक कि आप इसको सॉफ्टली, प्यार से, मधुर आवाज़ में इसको ना पुकारो, तब तक ये क्या होता है, भाग जाती है, नहीं आती है सामने। मॉप, मॉप इज़ अ वर्ड विच मीन्स फील अनहैप्पी, यानी कि जब तक आप इसको प्यार से नहीं बुलाते हो, सॉफ्टली नहीं बुलाते हो, मधुरता के साथ इसका नाम नहीं लेते हो, बुलाते हो, तब तक ये क्या होता है, अच्छा नहीं फील करती है। ठीक है, यू कैन से इट हैज़ अ ग्रेट एटीट्यूड ऑल्सो, कि उसको इज़्ज़त से बुलाओ, प्यार से बुलाओ, सॉफ्टली, उसको मधुर आवाज़ में बुलाओ, तब वो क्या करेगी, आएगी, नहीं तो वो गायब हो जाती है। तो एक बार इसका नाम फिर से ट्राई कर लेते हैं, ट्राई NTONT गनगोलोब। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। It trembles if you tickle it or tread upon its toes. It isn't an early riser, but it has a snobbish nose. If you sneer at it or scold it, it will scuttle off in shame, but it purrs and purrs quite proudly if you call it by its name and offer it some sandwich of wax and soap. So try NTONT, gongolob. See in the third stanza, what poet is saying? In this third stanza, poet describes the nature and behavior of the insect. अभी तक तो उसने उनका कहाँ पर वो किस तरह दिखती है बताया। सेकंड पैराग्राफ में हमें ये बताते हैं कि वो कहाँ पर रहती है, और थर्ड पैराग्राफ में ये बता रहे हैं द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट, एंड टेल्स this insect shivers and shakes if you tickle it or walk upon its toes. It doesn't work. It does not wake up early. If you try to mock or scold it, it runs away in shame. However, you will give something to eat or call upon its by its name, then it purrs and give you happy expression. यहाँ पर ये हमें कवि हमको ये बताना चाहते हैं कि ट्रिम्बल्स मीन्स होता है बच्चों घबराना, ये घबरा जाती है, ये घबरा जाती है। इफ़ यू टिकल, अगर आप इसको, टिकल मीन्स होता है, वर्ल्डली मीन्स होता है इसका गुदगुदी करना, बट हियर इन द सेंस ऑफ टचिंग, हल्के से टच करने के सेंस में। अगर आप ये घबरा जाती है, अगर आप इसको हल्के से भी टच कर जाते हो, या फिर ट्रेड मत, स्टेप ऑन, पैर रख देना, चलना, अपॉन इट्स टोज़, अगर इसके टोज़ पर, टोज़ एक वो बॉडी पार्ट यहाँ दे दिया हुआ नेम, लेकिन ऐसा नहीं है टोज़ ही किसी भी, मतलब कहीं भी उसको थोड़ा सा अगर उसको टच हो जाता है तो क्या होती है, ये घबरा जाती है। ठीक है, इसको अगर आप टिकल करते हो, टच कर जाते हो, या आपका पैर हल्का सा इसके किसी पार्ट पे, इसकी या टोज़ पे पड़ जाता है, तो ये घबरा जाती है। इट यू कैन से इट शोज़ इट इज़ वेरी शाई एंड टिमिड ऑल्सो, थोड़ी सी शर्माती है, थोड़ी सी डरपोक भी है। सी इन द नेक्स्ट लाइन, इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर, और इसको जल्दी उठना मॉर्निंग में पसंद नहीं है, इसको मतलब ये घंटों सोना पसंद करती है। इट लव्स टू स्लीप बट हैज़ अ स्नॉबिश नोज मीन्स फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, तो इसको बहुत अपने आप को सुपीरियर भी समझती है, घंटों सोती रहती है, खुद को सुपीरियर बहुत समझती है। ओके, एंड इफ़ यू मॉक मीन्स होता है कि किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसना। ठीक है, तो आप जब इसको चिढ़ाते हुए हंसते हो या मजाक उड़ाते हो, ऐसा लगता है कि मजाक उड़ा के इसको स्माइल कर रहे हो इसके ऊपर, या फिर इसको स्कोल्ड, या फिर इसको चिढ़ा रहे हो, डांट रहे हो, फटकार रहे हो, इट विल स्कैटल ऑफ इन शेम। स्कैटल ऑफ मीन्स होता है रन स्विफ्टली, तो हमारे शहर में क्या करती है, वो भाग जाती है।
बट इट पर्स एंड पर्स, वो लेकिन अपना साउंड, जो उसका साउंड होता है बोलने का, घुर घुर करने का आवाज़ जो है उसका, वो धीरे धीरे बहुत ही शान से वो अपना घुर घुर आवाज़ करती है। कब? जब आप इसको इसके नेम से बुलाते हो, या फिर जब उसको आप खाने के लिए कुछ देते हो। उसका जो फेवरेट फूड है, जो पोएट ने हमें बताया हुआ है, फेवरेट फूड उसका क्या है? वैक्स एंड सोप का सैंडविच उसका फेवरेट खाना है। जब आप उसको ये देते हो या फिर उसके नेम से उसको बुलाते हो तो क्या होता है, ये बहुत ही खुश हो जाती है, हैप्पी एक्सप्रेशन देती है, घुर घुर अपना जो उसका साउंड है वो साउंड भी क्रिएट करती है। देखिए हम क्या, चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। जैसे कि पोएट ऑल्सो हैज़ इमेजिन्ड हिज फूड ऑल्सो, इट्स फूड ऑल्सो, उसका फूड तक इमेजिन किया हुआ है कवि ने। इमेजिन, देखो इमेजिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग कुछ ट्विस्ट पढ़ेंगे, एक ट्विस्ट रिवील होता है। सी व्हाट इट इज़। बट ऑफ कोर्स, you have not seen it, and I truthfully confess that I haven't seen it either, and don't know its address, for there isn't such an insect, though there really might have been, if the trees and grass were purple and the sky was bottle green. And it's just a little joke of mine, which you will forgive, I hope. Oh, try, Auntie Gungolow. Now you can see here, in this stanza there is a twist revealed, and after giving the reader so much description about the insect, poet confesses that he hasn't seen the insect either. उन्होंने खुद ऐसा इंसेक्ट कभी नहीं देखा है, and he doesn't know where to find this insect, और उनको ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ मिलती होगी. He confesses and asks for forgiveness also. So see here in the poem. बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में आपने इसे नहीं देखा होगा, नहीं देखा है. एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस, मैं भी ये बहुत ही विश्वास के साथ कन्फेस करता हूँ कि मानता हूँ इस बात को कि मैंने खुद भी इसको कभी नहीं देखा है. क्यों? आई डोंट नो इट्स एड्रेस, मुझे इसका पता भी नहीं पता है कि ये कहाँ पर रहती है, मुझे ये खुद भी नहीं पता है, मैंने खुद भी इसको नहीं देखा हुआ. यहाँ पोएट कन्फेस कर रहे हैं. फॉर देयर इज़ंट सच एन इंसेक्ट. अब देखो इनका मजाक क्या है, ये कह रहे हैं क्योंकि ऐसा तो कोई इंसेक्ट होता ही नहीं है. दाउ देयर रियली माइट हैव बीन. हाँ, यद्यपि ये ऐसा हो सकता है इंसेक्ट, लेकिन कब? जब जो ट्रीज़ है एंड जो ग्रास है वो पर्पल हो जाए और जो स्काई जो है बॉटल ग्रीन हो जाए. अगर धरती अपना रंग बदल ले और आसमान अपना रंग बदल ले तो ये इंसेक्ट जो है हो सकता है सच में, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, इसलिए वो इंसेक्ट भी कभी नहीं हो सकता है. इट्स जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइन. ये मेरा छोटा सा मजाक था जो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे इसके लिए माफ़ कर दोगे. सो ओ ट्राई. तो फिर से कहते हैं कि एक बार ट्राई कर लेते हैं. इसका नाम ट्राई एंटी गनगलोव. Dear students, poets often use imagery in their poems. And you know what is imagery? Imagery is where language is used in such a way as to help us to form a kind of mental picture of the things that is being described or the idea that is being explored. यानी कि imagery उसको कहते हैं कि अगर पोएट किसी आइडिया को, किसी बात को अपने कह रहा हो और इस तरीके से कह रहा हो कि हमारे मन में एक तस्वीर सी बन जा रही हो कि हाँ, वो जो पोएट जिस चीज़ की बात कर रहा है वो ऐसा ही दिखता होगा. देखो ये जो पोएम है इसमें कवि ने किस तरह से उसके नेचर, बिहेवियर, लुक, इवन उसका खाना पीना सोना सब कुछ हमें बता दिया है. और ऐसा हमें पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था सच में ऐसा कोई इंसेक्ट होता है जिसे हमने नहीं देखा है. तो this poem is also an imaginary one, not a real story, and it talks about an insect which is nothing but the poet's imagination. So the poet C.J. Dennis talks about an imaginary insect called Triantionti gongolov, which the poet has neither seen nor does it really exist. ये उन्होंने देखा ही नहीं और ये होती भी नहीं है. And the poet gives vivid descriptions of the insect, its behavior, its habit, also the fact that the name is really hard one. उसका food, उसका रहना खाना सब कुछ उन्होंने हमें इस पोएम में बताया है. And at last he confesses that it's a joke and asks for forgiveness.
देखो फिगर बना रहे हैं कितने. So students, at last I want to share some value points for central idea of the poem. See here, I have written here. You can take hints for summary for central idea of the poem. There is some lines has written. See, there is one more thing which I want to discuss with you. Now we will talk some literary points, some literary devices of the poem. See, rhyming words and rhyming scheme. You all are knowing what is rhyming words. Words that have same or similar sound. जो भी वर्ड सिमिलर एंडिंग में जो सिमिलर साउंड क्रिएट करते हैं वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. और what is rhyming scheme? A pattern of rhyme that comes at the end of each line. जो पैटर्न होता है पोएम में, कविता में, कि उसका राइमिंग का जो पैटर्न है उसको बोलते हैं हम राइमिंग स्कीम. सी राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, स्पाई, फ्लाई, बी, ट्री, होप, ट्राई एन टी ओन टी, गॉन गॉलोप. तो राइमिंग तो वर्ड्स हैं ये, और इन वर्ड्स का राइमिंग स्कीम देखिए. स्पाई फ्लाई, इट्स मीन ए ए, ट्री बी एंड ट्री, बी बी, थर्ड लाइन में चेंज होता है. तो होप, ट्राई एन टी ओन टी, गन गोलोप, सी सी. इसी तरह से हमारे पोयम में, पूरे पोयम में हमारी यही राइमिंग स्कीम है, ए ए, बी बी, सी सी. आप पोयम जब पढ़ोगे तो देख सकते हो. रुको मैं आपको एक बार दिखाती हूँ फिर से. सी हियर, स्पाई, फ्लाई, बी, ट्री, होप एंड ट्राई एन टी ओन टी, गॉन गॉलोप. ऐसे ही यहाँ सेकंड पैराग्राफ में भी है. फेस, डिस्ग्रेस, स्केयर, देयर, मोप एंड देन इंसेक्ट नेम. एंड लास्ट थर्ड पैराग्राफ में भी है. टोस, नोज, शेम, नेम, सोप एंड ट्राई एन टी ओन टी, गॉन गॉलोप. लास्ट में भी है. कन्फेस, एड्रेस, हैव बीन, बॉटल ग्रीन, आई होप, ट्राई एन टी ओन टी, गॉन गॉलोप. तो ये हमारी पोयम थी. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल. हाँ, इसमें राइमिंग वर्ड्स के साथ साथ कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. दिस लाइन, इट इज़ समथिंग लाइक अ बीटल एंड लाइक अ लिटिल लाइक अ बी, लाइक अ बीटल लाइक अ बी. इट्स मीन देयर इज़ अ सिमिली. और भी बहुत सारे इसमें फिगर स्पीच आपको देखने को मिलेंगे. आप पोएम पढ़ोगे तो उसको अंडरलाइन करना, एंड यू अंडरलाइन करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस लाइन में ये फिगर ऑफ स्पीच है. ओके ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.